doing. Okay, so a quick introduction of everything. Okay, so like you can see that firstly we will start with a quick introduction and overview of what is CA, CA Foundation, CA Final, CA Enter क्या क्या है, एंड उसके साथ साथ अपने बात करेंगे सीए फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, एंड सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स पे भी अपने कैसे क्या पढ़ाई करेंगे और आज क्या होगा, ये हर चीज मैं बता दूंगा बहुत आसानी से, जाके जानकारी आपको मिल जाए. एंड उसके बाद मैं बात करूंगा अबाउट FTB and what we have planned. Of course, you guys know a little bit FTB, so we will talk about FTB's plans. That's also a part of introduction. FTB plan for CA Foundation November. Why? Because November stands out. आप लोग का batch stands out because we are suffering through a pandemic right now. Okay, so CA, then subjects, then FTB plan for CA Foundation, and then administrative talks, and then topic discussion, accounts, subject ka discussion. Okay, so these are the 5 things which I'm going to take up. Prior to anything and everything, a very warm welcome again, and thanks for attending today's session with us. This is the first CA Foundation class which we are holding on 2nd of June, that is today. Okay, and this class and week long, this week, this entire week, we have planned to give demo sessions of all classes. That is, starting from today's class till Sunday's class, all the classes which are given in the schedule and shared with you all of them are demo. You can attend to every class and any class if you like to. Okay, so sir, give us an introduction about yourself. Usually what I do is I take an introduction from my students and I give them my introduction. But from the list which we have, from the forms which you have filled up, I have seen the schools, the names of all the students personally. I do that so that I get a sneak peek into what's your background, educational background, a little bit of understanding I can develop from there. Okay, so let me introduce myself. uh, I don't like to introduce or boast about myself, but introduction is okay. So I am CA Shomodipto Das. Okay. So why do we call CA? Why do we add this prefix to this name? This is once you become a CA, just like a doctor, you know, you can use the prefix CA in front of your name. So that's like a, some doctor saying I'm Doctor this. So a CA says I am CA this. Okay. He may or may not. Sometimes I introduce myself as Shomodipto. But in professional domain, it's a must and it's a good thing if you introduce yourself with the acronym of the professional degree which you possess. Okay, so that's me. And I have done, apart from CA, I have also a CS and IFRS, and of course I had done BCom honors from Calcutta University. I'm very much from Calcutta, born and brought up like most of you. So uh, what about my educational career and background? I am from a Calcutta school only. If you guys know South Point, I'm from South Point High School, ex-pointer you can call it. And then, I did my college and from Calcutta University itself, BCom, and I kind of ranked in college. I never ranked in school. School was very tough. And then, then I became a CA, ICS, I did IFRS. All these while from my school days, I was, teaching. I was teaching initially for earning some additional income, pocket money as you call it. And later on, it became my hobby and passion and everything. I continued teaching. I was a manager in
several companies like Berger Paints India, Genpact India, a lot of other companies, DB Desai, Taxation. So everywhere I had worked, but alongside work, I was, teaching. In 2015, I become a full-fledged teacher. Full-fledged teacher. I become a CA, almost 9 years back. So in 2015, I became a full-fledged teacher. Teaching was no more a part-time vocation. I became a full-fledged teacher, and Face the Book is initiative by me. I am one of the founders of Face the Book, and that's about me. It's always pertinent and important and key for students to know who their mentor is. Unless they know who their mentor is, they will never be able to, try and know about, without knowing his background, they will never be able to connect. Okay, all right. So that's my background. Now, of course, my number, you guys have it, so I'm not sharing my number again. So now, a quick introduction on CA. Now, a quick introduction of CA. Most of you who have attended many, career counseling sessions or seminars by several coachings and several teachers, they know that CA, they know about CA, that CA is a professional degree. CA is a professional degree. Professional degree. Now, what do we mean by professional degree? What do we mean by professional degree? Let us understand and let us, try get the essence. A professional degree is a degree which is not a general one. Number one, professional word makes it different, but professional degree is actually different because the content and the syllabus and the toughness of the exam, everything taken together, professional degrees are very, 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 very tough to achieve. And that's why CA is one of the toughest exams to crack in India. CA is one of the toughest exams to crack in India. Why? Not because, meritoriously the syllabus is very, different, but because of few facts. Number one is the syllabus is vast, the course is vast, the knowledge is vast, and the most important factor is CA में luck का बहुत जरूरत होता है. Luck plays a big role, a big factor, in CA. A lot of us don't know that how big a factor luck plays. 1 marks के लिए, 1 marks के लिए रह जाता है बंदा, exam clear नहीं होता है. So that's the first note which I am highlighting while talking about CA. Why? Because of the fact that CA is a tough course, 1 in a million course, kind of that. Okay, and CA का acronym मैं जो बोला हूँ, Chartered Accountancy का acronym नहीं है CA. CA is committed achievers. So people who are committed to their goals, to their life goals, to their philosophy, to their mission, they are the ones who see to the end of the tunnel, and they become CAs. They become the achievers through their commitment. Okay, so CA is a brilliant course, a must do for all aspiring, commerce students. कॉमर्स में अपना और कोई कोर्स है ही नहीं, कॉमर्स में और कोई कोर्स है ही नहीं सीए का मुकाबले. बट इसका मतलब ये नहीं जिसको सीए का सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है वो भी सीए कर ले. मैं हमेशा बोलता हूं, यू मस्ट चूज अ कोर्स बेस्ड ऑन योर टैलेंट एंड स्किल, based on your talent and skill, and not only talent and skill but also your interest. Map your interest to your career. आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए. मैं अभी शुरुआत में मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा था. I could have, been in the corporate world itself. I have a CA firm. I do have a CA firm now, but the idea is I have chosen teaching as my predominant career. Why? Because I love to teach. Teaching interests me. Of course, I have a vast knowledge, I know, being a CA and also being a practicing CA, also, having industry experience and teaching for so many years, I have knowledge. But how I utilize my knowledge, by sharing it as a teacher or by consulting, by, soliciting clients, that's up to me. Now,
which one interests me most shall guide the path. Okay, so that's the word of advice. जिन लोग को कॉमर्स में, जिन लोग को लगता है कि कॉमर्स में वो लोग करियर बनाना चाहता है प्रोफेशनली, 12 के बाद भी, 11-12 में कॉमर्स लेके पढ़े, उसके बाद 12 के बाद भी कॉमर्स में रॉक करना है, तो इन दैट केस CA is one of the best options to rock, undoubtedly. Sir, why? What are the other points about CA? We are discussing this. Like I said, today I will cover all these things. Okay, all right. So we are discussing the yellow mark CA. What is CA? Okay, now CA is a professional degree. Like I said, sir, CA के साथ साथ और क्या क्या professional degree है? CS जो मैं किया, CA में सर आप CA में किए नहीं? Okay, so CA, CS, CMA, these three are on the same pedestal, on the same dais, on the same level. All these three are, you know, professional degree courses in India. सर आप लोग का कोचिंग क्या CS एंड CMA ट्यूशंस भी देता है? बिल्कुल, हम लोग CS एंड CMA ट्यूशन भी देते हैं. ओके, आई एम अ वेरी सीनियर फैकल्टी इन CA, so I teach till final, CA foundation, inter final, and FTB, face the book teaches. We have courses for 11-12 commerce, exclusive 11-12 commerce, and we have exclusive BCom, and we have very focused and very specialized and very dedicated CA foundation. Okay, CA, CS and CMA foundation. Okay, now going ahead, like I was saying that CA, CS, CMA प्रोफेशनल डिग्री का और क्या क्या खासियत है, और क्या क्या एडवांटेजेस है, और क्या क्या यू नो गुड पॉइंट्स है, मेरिट्स है. ओके, नाउ CA, CS, CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको मिल जाता है, आप नाम के पहले तो बैठा पाओगे, वो तो है ही. उसके अलावा प्रेस्टीज है, एक सोशल प्रेस्टीज या सोशल एक क्या बोलते हैं, स्टेटस, social prestige या social status, you know, is there. Social prestige or social status. Okay, now sir, social prestige और social status का क्या करना है? social prestige और social status का यही करना है कि अपने जब सोसाइटी में निकलते हैं या रहते हैं, अपने को फीलिंग आता है कि नेबर लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपिटिटिव एक फीलिंग आता है. देखो, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ ये फीलिंग आता है और हर एक जन में आता है, हर एक जन में आता है, सबकॉन्शियस, दैट द सबकॉन्शियस ह्यूमन नेचर. ओके, एंड फॉर विच वी ऑलवेज स्ट्राइव टू शो आवर बेस्ट टू द वर्ल्ड. We always try to show to the world or depict the world that we are doing the best. So in our careers also, if we do something which is worthy of sharing and worthy of, you know, mentioning, it gives us pleasure from inside. So that pleasure is being talked about as social status. आप जब बोलते हो मैं एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हूँ, in society, in job market, in anywhere, it changes the viewpoint of the other person you're speaking to. It does. Some people it doesn't matter. For instance, to me, a person like me, I don't judge a person by their degree or whatever, but to most it does. Okay, so that is another key point why people go after professional degrees in their educational career. And the most important reason for doing a professional course or professional degree course is the very fact that जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो उस डोमेन का नॉलेज कोई और कोर्स आपको नहीं दे पाएगा, उस डोमेन का कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में आपको जो नॉलेज मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा. ये सीए का जर्नी आसान नहीं है, 5 साल लग जाता है लोगों को. अभी से अगर आज स्टार्ट कर रहे हो आपको 5 साल लगेगा, इसीलिए अर्लियर द बेटर, सूनर द बेटर. सूनर यू ज्वाइन द बेटर यू आर. ओके, बट 4 से 5 साल लगेगा वन शॉट में पास करने के लिए. अगर बीच में कोई अपसेट हो गया तो फिर और टाइम बढ़ते जाएगा 6 महीना करके. तो अल्टीमेटली अगर क्विकली यंग एज में
सीए डिग्री चाहिए, तो नाउ इज द राइट टाइम टू टेक एडमिशन एंड स्टार्ट विथ इट, स्टार्ट विथ इट विदाउट एनी फर्दर एड। सीए हो या सीएस हो या सीएमए हो, अभी मैं बताने वाला हूँ तीनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या कोर्स का स्ट्रक्चर है। ओके, so this is the first word of advice: start young. You guys are all young. Decide in your head which one attracts you and do it. Another reason for doing a professional degree course, like I said, number one reason is knowledge, number two reason is degree gives you a social impetus, social status, and number three is what I am going to say: the money, the returns. हम लोग सब काम करते हैं रिटर्न के लिए एट द एंड ऑफ द डे। अगर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो अपने क्विट प्रो को, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में या लैटिन में, क्विट प्रो को मींस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन अगर ठीक से नहीं मिला या नहीं मिलता है तो क्या फायदा भाई काम करके इतना। तो प्रोफेशनल डिग्रीज में एमबीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सीए हो, एवरेज में, ऑन एन एवरेज अगर सब प्रोफेशनल का अर्निंग निकाला जाए तो एवरेज या मीन, स्टैटिस्टिकल मीन जिसको कहते हैं, तो एवरेज या मीन ऑफ अर्निंग्स ऑफ अक्रॉस ऑल द प्रोफेशंस, सीए हैज अ वेरी गुड एवरेज अर्निंग। सीए लोग का एवरेज में अर्निंग बाकी प्रोफेशनल से काफी ज्यादा है और आगे है। सर इवन अगेंस्ट एन एमबीए? यस, इवन अगेंस्ट एन एमबीए। Ironic, feels very strange, but it is a fact. And also I tell you, अच्छा सर एवरेज बोले, हाँ मैं एवरेज बोला, मेरा बातों का गलत मत समझना, मिस इंटरप्रेट मत कर देना। कोई समझा ही नहीं एवरेज वर्ड का, मालूम मतलब एवरेज वर्ड को समझा ही नहीं और क्लिप ले लिया, सर बोल रहे सीए का कमाई ज्यादा है एमबीए से। नहीं, आईआईएम का एमबीए ज्यादा कमाएगा, बट अगर सारा 20 स्कूल्स का एवरेज किया जाए, सारा 20 स्कूल्स मतलब बहुत छोटा छोटा 20 स्कूल्स भी है, उन लोगों का लेके अगर एवरेज कर लो तो एवरेज में कभी कभार आईआईएम का पैकेज इतना हाई रहता है कि वो एवरेज को भी पुल अप कर देता है, बट दैट्स अ स्टैटिस्टिकल लाइफ। रियल लाइफ में ऑन एन एवरेज जनरल सीए विल अर्न मोर देन अ जनरल एमबीए। नाउ स्पेशल सीए, स्पेशल एमबीए तो बात ही अलग है, वो लोग तो स्पेशली कमाएगा। कोई भी प्रोफेशन में स्पेशल लोग आर ऑलवेज अहेड ऑफ द रेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। ओके, now the idea is, sir, तो फिर why CA and why not MBA and why not other things? Because CA में टाइम भले ही ज्यादा लगे, कॉस्ट इज द लोएस्ट। MBA में मिनिमम एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट आपको लगता है 20-20 लाख का, बट CA में उतना कुछ सोचना ही नहीं है। पूरा कोर्स फाइनल तक CA इंस्टीट्यूट में 1 लाख भी खर्चा नहीं होगा, नॉट इवन अ लाख। हाँ ट्यूशन फीस है, हाँ ट्यूशन फीस अलग से है, और ट्यूशन फीस भी कुछ ट्यूशंस बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। सर हाउस एफटीबी वेरी 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 अफोर्डेबल, ठीक है, यू हैव नो आइडिया। ओके, सो द आइडिया इज सीए ट्यूशंस आर मच मोर अफोर्डेबल देन कैट और अदर ट्यूशंस। यस, इट्स अ फैक्ट। सो अगर कम खर्चे में ज्यादा रिटर्न मिले, सो दैट मेक्स योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट और लोएस्ट? हाईएस्ट मैथमेटिकली। ऑल्दो मैथ्स क्लास 2 बजे है, मैं थोड़ा बहुत मैथ्स मेरे को भी आता है तो मैं बोल रहा हूँ, एक सीए की तरह मैथ्स, सीए खाली रिटर्न सोचता है तो रिटर्न खाली बोल दिया। द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विल बी हाईएस्ट बिकॉज योर डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट रहेगा जो कि लो है, और न्यूमरेटर में रिटर्न रहेगा जो हाई है। हाई बाई लो इज ऑलवेज हाई। Okay, all right, that's the mathematical tuition. You will take it up in Aditya sir's class. I will deal with accounts and law only. But coming back to which courses are the best and which courses are the worst, बोल के कुछ नहीं है। Which courses are best suited for you and which courses are not suited for you? CA actually stands out. Number one, because of their profound knowledge which the course gives. Number two, the respectful profession. Number three, returns. And number four, low cost. देखो पॉइंट्स यही पे रट गए, सर ये पढ़ना है, नहीं ये पढ़ना नहीं, मैं दिखा रहा हूँ स्टाइल ऑफ टीचिंग। ओके सर, सब्जेक्ट्स अभी बताइए, सब्जेक्ट्स आप बताने वाले थे। सब्जेक्ट्स बताने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ सीए लोग कौन कौन सा फील्ड में रहते हैं। द फील्ड्स अगर बात किया जाए सीए का, सीएस का और सीएमए का,
तो मैं बता दूं फील्ड्स क्या क्या है, अभी बात कर रहा हूं, डोंट वरी। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फील्ड में सीए यस, सीएस नो and CMA yes. In the field of accounting is the only subject which you have devoured or eaten up in class 11 12 like anything, and we will start with that subject only, the subject you love, and I love teaching. Okay, so accounting is the field. If we talk about accounting as a field, it is a core domain of CS and CMS, but not CS. Okay, all right. If we talk about taxation, सुने हो ना, taxation as a field, CS rule there's no other professional who can do wonders in taxation. Lawyers can to certain extent, litigations, but other than lawyers और कोई प्रोफेशनल है नहीं जो सीए का मुकाबला कर पाए टैक्सेशन. ऑफ कोर्स सीएस एंड सीएमए वालों को नॉलेज है, बट they are not the rulers of this profession. CAs are undoubtedly the rulers of the profession. Okay, all right. No. Number 3, if you've heard of this term, what I do in my CA firm, मेरा एक CA firm है, मैं बोल रहा था, तो CA firm में मैं ऑडिट करता हूँ. तो another field is auditing. तो ऑडिटिंग में ऑफ कोर्स CA लोग करता है. मेन जो ऑडिट होता है, खास जो ऑडिट होते हैं, वो सीए लोग ही कर पाता है और कोई कर भी नहीं पाएगा लीगली. बट सर सीएस और सीए में हाँ उन लोग का अलग अलग ऑडिट रहता है. तो यस मैं लिखा, बट दे हैव लिमिटेड स्कोप इन दिस फील्ड ऑल्सो. सर एमबीएस तीनों में कहीं नहीं है. नंबर 4 finance. Here MBA finance can rule, but can CS and CMA work? Yes, CA and CMA also can work and they can also rule, but not CS. So then what other profession and what other field? करियर को एकदम जान लो क्या है कॉमर्स में आगे जाके इंडस्ट्री में. Okay, another field is corporate law. Here CS लोग will rule. They are the rulers. कैपिटल ईएस दे दिया और कोई है ही नहीं. सीएस लोग का यही काम है कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्ट होना. सर आप लॉ पढ़ाते हो, आप सीएस की इसलिए नहीं, सीएस तो कर लिया, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए प्रैक्टिस में भी आई डू अ लॉट ऑफ सॉलिसिटिंग इन कॉर्पोरेट लॉ. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन सीए डोमेन in Calcutta. I am one of the front runner as a teacher of law. Okay, so you have come to the right place when it comes to law and accounts, and because I am the faculty, so I have a huge experience of teaching these two subjects. I was a former teacher of CA Institute also in accounts. Okay, all right. So corporate law, yes, CA लोग को भी जानना पड़ता है and CMA लोग को भी जानना पड़ता है. Okay, sir. Sir, these are the fields and the domain of CA, CS, CMA. Yes. Okay. Now, sir, तीनों में एग्जाम क्या होता है? एग्जाम्स, अगर एग्जाम्स का बात करें, इफ यू गाइज वांट टू कॉपी, यू गाइज कैन कॉपी दिस, बिकॉज बाद में भूल जाओगे, या फोटो लेना है ले सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो. आई एम वेरी फ्री. Okay, guys. Exams are held in all the 3 courses at 3 levels. 3 level में एग्जाम लिया जाता है. Level 1 is foundation. Level 2 is known as inter, and level 3 is known as final. अभी देखो नाम, ये तीनों लेवल का नाम अलग अलग है. जैसे सीए में फाउंडेशन इंटर फाइनली बोलते हैं, सीएमए में फाउंडेशन इंटर फाइनली बोलते हैं, सीएस में अभी नाम थोड़ा चेंज हो गया, नाम थोड़ा बहुत वो लोग चेंज कर देते हैं एग्जाम का, बट 3 लेवल में एग्जाम तीनों कोर्सेस में लिया जाता है. ओके, सो 3 एग्जाम है. मैं इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं. देखो
ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इतना टफ क्यों बोला जाता है मार्केट में? तुम लोग जब 11-12 में भी थे तब सुनते थे सीए इतना टफ है, मेरा भैया कर रहा है, मेरा दीदी कर रहा है, कर ही नहीं पा रहा है, बहुत बार फेल कर रहा है, बहुत बार दे रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये सब जो सुनते हो चारों ओर, ये क्यों सुनते हो? थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है? मैं बता दे रहा हूं कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है इसमें कैंडिडेट्स हाईएस्ट रहते हैं, कैंडिडेट्स हाईएस्ट रहते हैं। तो लेट्स से 1000 कैंडिडेट्स दिया, 1000 कैंडिडेट्स अगर दिया तो मैं बोल सकता हूं 1000 कैंडिडेट्स अगर सीए का फाउंडेशन दिया, पास करेगा लेट्स से 30%, तो 300 पास करेगा। मैं जनरल एक बता रहा हूं जो ट्रेंड है, 30% अगर एवरेज पास करता है तो 300 पास करेगा। अब ये 300 कहां पे जाएगा? यहाँ पे इंटर में। समझ में आ रहा है ना मेरा बात? हाँ सर, ये 300 जाएगा इंटर में, और ये 300 जो है, ये 300 में इंटर का पासिंग परसेंटेज, इंटर का पासिंग परसेंटेज यहाँ पे था 30% पासिंग परसेंटेज, ठीक है? इंटर का पासिंग परसेंटेज इज लेट्स से 15%, तो 15% ऑफ 300 विल बी हाउ मच? 45। तो 45,000 में से फाइनल जा रहा है। समझ में आ रहा है कितना कितना मिनिस्क्यूल हो जा रहा है? एंड 45 अगर तुम्हारा फाइनल में कैंडिडेट्स रहेगा, ऑफ कोर्स इंटर से पास करेगा, फाइनल में जाएगा 45, फाइनल का पासिंग परसेंटेज इज 10%. So you can do the math, it's 4.5, so I am rounding it off to 5. So 5 CAs, yeah, 5% become CA directly, one shot CA. 5% will become CA at the first attempt at one go, out of 1000, out of 1000. Sir, are these actual percentages? There's a query. I am very interactive. As soon as you drop a query, I'll answer. Do not worry. These are absolutely sane and true and correct facts. मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा, एकदम मिला नहीं रहा हूं पानी। इसीलिए फाउंडेशन पास करना इज द इजीएस्ट, क्योंकि देखो पासिंग परसेंटेज हाईएस्ट है और लोएस्ट लेवल है बॉटम ऑफ द पिरामिड में, और फाइनल पास करना टफेस्ट, और एक बार में सीए पास करना और टफ। ऐसा नहीं है कि ये 700 जो फेल करेगा वो लोग छोड़ देगा, 700 वापस देगा, रिपीटर हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है। मैं बोलने का मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट शॉट में, इसलिए इतना टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है? 1000 से 5 प्रोसेस को समझो। ओके, सो on that note, I have shown you how it is tough. Many people don't even know. They teach, they do this, that. Okay, now let's come back to straight away let us come back to sir syllabus लेके थोड़ा बात कीजिए ना। syllabus, contents नहीं, syllabus. okay, syllabus का मतलब है आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है वो कंटेंट्स में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बोला कंटेंट्स नहीं, सिलेबस। क्या क्या सब्जेक्ट्स है पोस्ट में? देखो सब्जेक्ट्स ही नेक्स्ट था सीए के बाद, सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो सब्जेक्ट्स में आ गया, तो मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ। ओके सर, होल्ड कर दे। ऑलराइट गाइस, सो सब सिलेबस या सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए, अपने सीए फाउंडेशन में सिलेबस लोएस्ट है, फाइनल में हाईएस्ट है, इसलिए फाइनल में पासिंग इज लोएस्ट एंड फाउंडेशन में पासिंग इज हाईएस्ट। तो मैं थोड़ा सा तुम लोग को दिखा देना चाहता हूं, सीए में, सीए कंप्राइजेस 4 सब्जेक्ट्स, as you know, accounts, law, maths and eco. सर लॉ के साथ एक बीसीआर बोल के कुछ है, इको के साथ बीसीके बोल के कुछ है, हाँ, मैथ्स के साथ स्टैट्स है, हाँ मेरे को मालूम है, मैं ब्रॉडली लिखा। ओके, ऑलराइट सर। सो फाउंडेशन में ये है,
अकाउंट्स मार्क्स का अगर बात बोला जाए तो मार्क्स चारों में 100 है। ओके सर, ओके। टाइप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? अकाउंट्स एंड लॉ आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या है मैं बता रहा हूं, और ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू। समझ में आया? स्ट्रेट अवे 4 ऑप्शंस रहेगा, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, बस बात खत्म। तो सर मैथ्स एंड इको तो इजी है, हाँ इजियर है, बट मैथ्स कभी इजी होता ही नहीं है कॉमर्स वालों के लिए, इसीलिए मैथ्स टफ रहता ही है। बट इको बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान। इको इसलिए क्लास में पढ़ने से ही बात हो जाता है, घर में अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ता है। और सर व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स एंड लॉ? लॉ तुम सोचो, कभी तुम किए ही नहीं बचपन से, पहला बार आके सीए में आ जाता है। और सर लॉ तो आपका फोर्टे या स्ट्रेंथ है, हाँ मतलब आंख बंद करके बहुत ज्यादा हो जाएगा खुद के बारे में बोलना, बट हाँ in India I can tell you that you are in the right hands in these two subjects. Okay, now the idea is sir तो अपना यहाँ पे जो लाइनअप है, ये लाइनअप क्या बहुत ही बढ़िया है, नहीं खुद का बात नहीं बोलूंगा, इसीलिए डेमो क्लास में आप लोग आए हो, आप लोग देख ले। ओके, नाउ सर सब्जेक्टिव का मतलब? सब्जेक्टिव का मतलब हाथ से जो आंसर बनाना पड़ता है लिख के, एमसीक्यू ऑप्शंस नहीं, ओएमआर शीट नहीं। ओके, तो सब्जेक्टिव। सर नेगेटिव मार्किंग किसमें है? ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग है, गलत आंसर टिक करोगे गेस वर्क में तो फिर मार्क्स कट लिया जाएगा, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग इन दोनों में है, तो इन दोनों को रेड कर दे रहा हूं। और पॉजिटिव मार्क मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर ये दोनों को ऐसे ही रख लो, ठीक है? तो सर ये है सीए फाउंडेशन, हाँ ये है सीए फाउंडेशन। चारों सब्जेक्ट के बारे में भी हल्का सा बोल दिया, इसलिए सब्जेक्ट्स बोल दिया। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना कि अपना अपना जो एफटीबी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन, ये भी मैं हल्का से बोल दिया, फैकल्टीज का लाइनअप एंड वगैरह। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कुछ चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एफटीबी प्लान एक साथ बोल देगा, फिर वी विल स्टार्ट विद अकाउंट्स राइट अवे। ओके ओके, डोंट वरी। नाउ द फर्स्ट थिंग, पेज द बुक ट्यूटोरियल का ये पहला बैच है। सर क्यों? इसके पहले फेज द बुक था नहीं, इसके पहले फेज द बुक सीए फाउंडेशन में था नहीं, बीकॉम एंड 11th-12th में था। सर फेज द बुक नया है? नहीं, क्योंकि मैं इतना पुराना हूं तो फेज द बुक कैसे नया होगा? फेज द बुक was the coaching which I had opened, which was there since 2015 or even earlier, because since the time I started teaching I did not name it Face the Book, I named it Face the Book in the year 2016. बट आई वॉज टीचिंग सी ए तो सेज द बुक का नाम उतना फैला नहीं बीकॉम एंड 11th-12th में। सो वी हैव स्टार्टेड once again, you know, once again focusing on 11th-12th and BCom with my partners, because I did not have partners and now I have. So with our partners we are starting to divide, we have started to divide it. Okay, we are a coaching based out of South Calcutta where my residence is. So we are based out of South Calcutta and we plan to spread even in, you know, northern parts, but things will take time, especially in this, you know, pandemic time. So ye pandemic ka time mein what have we thought and what is our plans? It's very important for you guys to know clear and loud. Okay, so we have thought and we have built a roadmap. The roadmap is firstly अपने को एजुकेशन को कंटिन्यूअस रखना है। इसके पहले मैं बहुत बड़ा, इंडिया का बहुत बड़ा सीए कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ा हुआ था। सो आई वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड सो you know that my philosophy in education and teaching can be given unhindered without any conflict of interest with the other stakeholders. So for that reason, for that independence, for that, you know, facilitation to my students, I thought of Face the Book announcing CA Foundation. And with me, of course you guys have heard about him,
is a very able, very able teacher of maths, who is the master of CAT ka maths. CAT is mother of all exams, and CAT ka maths ka master hai. So I'm proud to associate with him, and we have built up FTB. He is Aditya Goenka sir, whose class will be there from 2. ठीक है, तो एमसीक्यू मैथ्स तो उनके लिए क्या होगा सोचो, उनके लिए जो भी हो वो तुम्हारे लिए वैसा बना देगा. ओके, नाउ द आइडिया इज सर, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान क्या है फेस द बुक का? तो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान इस कैलेंडर ईयर में कुछ ऐसा है कि सीए फाउंडेशन कोर्स अपने लाइव ऑनलाइन ही करेंगे. लाइव ऑनलाइन करेंगे मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि जाके तुम लोग को कष्ट करके ना आना पड़े. फिजिकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होने वाला है, तुम लोग भी सुने हो. एंड trust me on this, till December we will not have a vaccine which can be used. अगर डिस्कवर भी हो जाए, उसका कमर्शियल मास प्रोडक्शन में टाइम लगता है. तो कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस जो रहने वाला है, देखो तूफान आया, तूफान तो चला गया, वो तो ठीक हो जाएगा, बट कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी का जो हालत हुआ है, एंड जो एकेडमिक सेशंस का हालत हुआ है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वी आर अफेक्टेड बाय एकेडमिक सेशंस गेटिंग डिलेड. सो the best plan is to use technology and give classes and do online classes. So online classes is the way forward, and we are investing on it. We are trying to give our best to you. We will do backups. We will also we are also designing an app जाके आपको और जल्दी से बैकअप मिले, होमवर्क असाइनमेंट्स ठीक हो. ठीक है, so we are thinking of all possibilities to help you, facilitate you from home and at your home. Okay, home delivery of services. So the idea is, this is our plan, the plan which I was talking about. In case things gets lifted, we can call you to our coaching also. As it is, physical or online meeting, anything, we will keep it such a way that you get educated unhindered. That is the plan. Okay sir, administrative plan kya hai? This entire week is a demo week. 1-2 महीना अपने कभी कभी डेमो वीक ऐसा होस्ट करेंगे. वी विल कॉल फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्टर्ड ना, मतलब एडमिशन ना लेने के बावजूद भी वो लोग क्लास कर पाएगा हम लोग के साथ. Beat your friends, your circle, you guys can also spread the word around and create awareness. And once this week is over, you will have to take admission to continue with the classes. Okay, and this month we haven't shared our posters with you. This month whoever takes admission, matlab coming week mein, whoever takes admission, he or she will get a flat 50%, and our fees are already quite reduced. Okay, so wo reduced fees mein bhi flat 50% mil jayega. So these are the these are the offerings which we are offering to all our students, because these times are tough times and we want to stand by you. Okay, so this is our initiative. Now I will right away kickstart with our most loving subject, which is accountancy. Okay, which is today's paper. I knew I'll take half an hour or so just to discuss everything and give you a picture about everything. And this is exactly how I teach law and accounts, telling you everything. Okay, all right. Let us start. Let us start with the subject. Okay, now, last announcement before I go ahead with the subject. All of you attending today have our routine. Routine में class time 2 घंटे का है, but ये demo week में अपने जो classes है, accounts and maths and law and eco, चारों subject ही 1.5 घंटा होगा. ठीक है, 1.5 hours. ठीक है, तो ये मैं बोल दिया. 2 घंटा अपना शेड्यूल में है, वो शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल है. नॉर्मली अपने 2 घंटे का क्लास करेंगे और उतना क्लासेस करेंगे, बट अभी डेमो वीक के लिए अपने 1.5 आवर्स कराएंगे. ठीक है, मतलब 11 बजे शुरू होगा तो 12:30 बजे खत्म होगा, वो 2 बजे शुरू होगा तो 3:30 बजे खत्म होगा. ये मैं बोल दिया verbally. थैंक यू. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ओके,
A very, 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 very basic question. A very, 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 very basic question, sir. Books कहाँ से मिलेगा? बुक्स में एडमिन में बोला नहीं, बुक्स मिलेगा आप लोग को ऑनलाइन, सारा बुक्स मिल जाएगा. इफ यू वांट वी कैन आल्सो सेंड यू द कॉपीज ऑफ द सेम एंड यू कैन डाउनलोड इट योरसेल्फ. इट्स फ्रॉम अ फ्री वेबसाइट. इट्स द वेबसाइट ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट. सीए इंस्टीट्यूट अपना स्टूडेंट्स के लिए ये वेबसाइट में किताबें अपलोड करके रखे है. सर कहाँ? icai.org. you can see on the link icai.org. स्टूडेंट्स टैब में जाना है, मैं सिखा दे रहा हूँ पाथ. स्टूडेंट्स टैब में जाके BOS नॉलेज पोर्टल, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में क्लिक करना है. एंड वो नॉलेज पोर्टल में क्लिक करने से आपको दिखेगा, देखो, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग में फाउंडेशन कोर्स, इसमें क्लिक किया और खुल गया चारों पेपर सिलेबस के साथ. क्लियर है? तो अपने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग अपना पेपर का नाम है. इसमें हर चीज दिया हुआ है, मतलब हर चीज मटेरियल में दिया हुआ है. स्टडी मटेरियल में हम लोग क्लिक किए तो स्टडी मटेरियल में ये है अपना सिलेबस. और ये सिलेबस अपने करने वाले हैं, मेरे साथ आप लोग करने वाले हो. एंड बहुत आसानी से हम लोग करेंगे. इसमें काफी सारा चीज कॉमन है 11th-12th का, कुछ नया चीज है हल्का सा. और मतलब it is nothing but what you have done in your 11-12 accounts. जिन लोग का 11-12 accounts में conceptually अच्छा नहीं थे, this is the best time to conceptually turn around. I will teach conceptually. मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, I love concepts and I love teaching conceptually in the depths. So if you are made out, if you are built for learning concepts voraciously and applying concepts technical, तो यू विल लैप इट अप. मैं रट्टा मार के पढ़ा नहीं पाता हूँ. लॉ जैसा थ्योरी सब्जेक्ट मैं कंसेप्चुअली समझा देता हूँ, तो अकाउंट्स तो महा कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है. दोनों ही लॉ एंड अकाउंट्स आर वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स. Okay, so this is the syllabus and this is where you will get your books for all subjects, more importantly. So this is the path, ici.org. वहां पे जाके स्टूडेंट्स टैब में जाके बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, वहां पे जाके फाउंडेशन कोर्स, वहां पे जाके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट. ओके, ऑलराइट सर. सर आप क्या पहले ये कराएंगे यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1? यस, यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1 ही कराएंगे, मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. एंड इसी में मैं पहले सवाल आप लोग को रख दिया. मैं बुक देख के कभी नहीं पढ़ाऊंगा लॉ भी अकाउंट्स भी. मैं खुद का सम खुद बना दूंगा और खुद का एग्जांपल खुद लूंगा. बुक को रेफर करेंगे, देखेंगे बुक में सेम चीज लिखा है या थोड़ा अलग शब्दों में लिखा है, बट सेम कॉन्सेप्ट लिखा है कंसेप्चुअली. ठीक है ना? तो मैं खाली आप लोग को पूछा एक सवाल और पूछ के बुक का पहला पेज निकाल दिया. जाके कभी कभार बुक देखेंगे कवर करने के बाद डिस्कशन. What is accounts? Can anyone answer through chat? I want to keep it interactive. Chat में can anyone write to me what is accounts, guys? I'm waiting. No one writes. No one knows what is accounts. Okay, what is accounting? Same thing, synonymous. I was asking. Okay, I am answering what is accounting. Accounting is a process. Accounting is a process of recording से शुरू किया, याद रखना. Recording, classifying, summarizing, analyzing, communicating and reporting. रिपोर्टिंग में खत्म हुआ, याद रखना. सो रिकॉर्डिंग से रिपोर्टिंग, हर चीज. ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. मैं बोर्ड में जो भी कर रहा हूँ वो तुम लोग कॉपी कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, जाके याद रख पाओ नेक्स्ट क्लास. और मेरा कॉपी एक बुक जैसा बन जाता है, उसके साथ बुक इज मोर देन इनफ. ठीक है? एंड आई गिव नोट्स. यस, आई डू गिव नोट्स. ओके. and reporting of transactions. So the first question and its first answer is accounting is a process. Accounting एक process है of recording and
classifying, summarizing, analyzing, communicating and reporting of transactions. अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं टेक्निकल वर्ड्स के बाहर, एक चीज समझाऊंगा, फिर टेक्निकल वर्ड्स में वापस आऊंगा तो पूरा बैठ जाएगा। हम लोग जो बिजनेस करते हैं या कोई भी इकोनॉमिक एंडिवर करते हैं, वॉट एवर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स वी आर इन्वॉल्व इन, वी डू इट विद अ मोटिव। हम लोग एक मोटिव के साथ, एक पर्पस के साथ करते हैं। जैसे कि मैं अगर हर रोज पढ़ाता हूं तो मेरा एक पर्पस है, एक तो है सोशल पर्पस। टीचिंग इज अ वेरी गुड वर्क, a very good job. It adds a lot of values to a lot of lives. Okay, and there's some financial aspiration also. I'm teaching so that I can earn and survive and pay my bills. Okay, so the idea is, sir, तो आप बोलने का कोशिश कर रहे हो कि ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई भी बिजनेस करे, कोई भी प्रोफेशनल करे, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज अपने जो कर रहे हैं, ये करने के बाद ये सबसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या ये सब करके क्या अल्टीमेट नेट रिजल्ट हुआ या क्या गेन हुआ, ये जानने के लिए कोई तरकीब रहना चाहिए। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। I am saying that whatever economic activity we do, at the end of the day, what is the net result from the economic activity, that should be a very important factor to know. That should be a very important factor to know. To know that accounting is a process. So accounting is a process to know that what are the or what is the results of the economic activities that we enter into. यानी कि आज अगर मैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये जानने के लिए हिसाब करना जरूरी है। और ये हिसाब को ही अपने बोलते हैं अकाउंटिंग। इतना आसान है सर, इतना आसान है अभी के लिए, अभी जो समझा रहा हूं वही समझिए। Okay, sir, accounting is a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, communicating and reporting of transactions. Yes, sir, what are transactions and what is transaction? So transaction क्या है? अभी नेक्स्ट सवाल वो पैदा होता है सर। हाँ, what is transaction? देखो, मैं इकोनॉमिक इवेंट्स बोला तो ये इकोनॉमिक इवेंट्स है। Transactions are economic events which will change your financial position or not change your financial position, which will impact and change your financial position. So which changes our financial position, which changes our financial position. So economic events which changes our financial position are known as transactions. यानी कि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स ही ट्रांजैक्शंस है जो कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। यानी कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने वाला इकोनॉमिक इवेंट्स को अपने ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट ट्रांजैक्शंस। एंड इन अकाउंट्स हिसाब करने के लिए मेरे को क्या रिकॉर्ड करने से काफी है, हर इवेंट्स या इकोनॉमिक इवेंट्स विच चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक इवेंट्स विच चेंजेस आवर फाइनेंशियल पोजीशन, those events if we record and if we report and if we do whatever functions I have written in between recording to reporting is enough for accounting. Accounts करने के लिए यही काफी है कि हम लोग ट्रांजैक्शंस जितना है उतना रिकॉर्ड कर लिए, उससे फाइनेंशियल रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हाँ है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जानने के लिए अपने को क्या चाहिए, मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या नॉन मॉनिटरी नॉन बिजनेस इवेंट्स, मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, all right, so 2 questions 2 answers, you guys know now. Now one more thing, 2 more things we can deduce from here. One is all transactions are events. सारा transaction event है because transactions itself are economic events,
But are all events transactions? No. So all transactions are events, but all events are not transaction. सर ये तो आप बहुत बेसिक लेवल में पढ़ा रहे हो. हाँ, मेरा हैबिट है बेसिक लेवल में पढ़ाना, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर बेसिक लेवल में एक बार क्लियर हो जाए और जिनका क्लियर हुआ है उनका और एक पर्सपेक्टिव मिल जाए तो उससे बेहतर अकाउंट्स में कोई नहीं बन पाएगा. और जो लोग एकदम वीक है उन लोग के लिए तो यही जरूरी है, जो लोग स्ट्रांग है उन लोग के लिए भी ये जरूरी है. ठीक है, ओके. सो सर और एक चीज आप क्या बोलने वाले थे? आप दो चीज बोले थे. हाँ, ट्रांजैक्शंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीटरी टर्म्स. इसीलिए मैं क्या लिखा, इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट्स. Economic events are the ones which can be translated in terms of money or expressed in terms of money. Okay, so these are the three things. Okay sir. Sir, next question क्या होता है, बहुत जल्दी से मैं समझाने वाला हूं. एक शब्द है बुक कीपिंग. यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या है फिर? व्हाट इज बुक कीपिंग? एनीवन हैज एन आइडिया? कैन शेयर. यू कैन चैट एंड राइट टू मी. आई कैन वेट एंड रीड योर थॉट. अकाउंटिंग एक शब्द है तो बुक कीपिंग और एक शब्द है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म बुक कीपिंग देन? एनी आइडिया गाइज? प्लीज बी इंटरैक्टिव. नो वन हैज एन आइडिया? Waiting for you guys to write. No one writes. Okay, now bookkeeping is the recording of, okay, someone writes, record of economic transactions. Okay, Pradyuman, very good. Recording of economic transactions को bookkeeping कहा जाता है. यानी के बहुत आसान. ये जो अपने अकाउंट्स में देखे, अकाउंट्स में देखो, यहाँ पे, कहां पे सर? यहाँ पे देखो, अकाउंट्स में अपने देखे, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के साथ साथ और भी प्रोसेसेस देखे ना, जैसे कि क्लासिफाइंग. रिकॉर्डिंग था 1, क्लासिफाइंग था 2, हाँ है ना? तो ऐसे समराइजिंग था 3, एनालाइजिंग था 4, ओके, कम्युनिकेटिंग था 5 एंड रिपोर्टिंग था 6. ओके, रिपोर्टिंग था 6. जस्ट अ मोमेंट. रिपोर्टिंग था 6. ओके, बट if we talk about what is what is bookkeeping? Bookkeeping involves nothing but recording only. Bookkeeping involves nothing but recording only. यानी कि बहुत इजी चीज है, बहुत आसान चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है. अकाउंट्स में अपने रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग हर फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं. अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग हर चीज. बट बुककीपिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है. माइंड यू, बुककीपिंग इज ओनली एंड ओनली रिकॉर्डिंग ओनली. सर ये टर्म कुछ जचा नहीं, ऐसे बोला. Of course not written English. Bookkeeping is only and only recording. Okay, bookkeeping is not classifying, summarizing, analyzing, communicating and reporting. Bookkeeping is only recording of transactions and accounting is these of transactions. So दोनों फर्क है. So sir, bookkeeping is a part of accounting. Yes, bookkeeping is a part of accounting because accounting involves recording also and bookkeeping involves recording only. Okay, so bookkeeping is the bookkeeping. You can write, please write all the things like I'm writing on the board. Okay, bookkeeping is the recording phase of accounting. Recording phase of accounting को अपने bookkeeping बोलते हैं. Recording phase of accounting. Okay, so sir, bookkeeping is the recording phase of accounting. तो समझ में आया? So आप क्या बोलेंगे? Bookkeeping is a part of accounting. Yes, bookkeeping is a smaller part of accounting, only the record making phase. Otherwise, accounting involves bookkeeping.
अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग। तो सर ये एक डिफरेंस आता है, बचपन में हम लोग देखते थे अकाउंट्स का बुक में, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कर दे रहा हूँ। देखो अकाउंट्स में कैसे अपने चलेंगे, मैं एक बार बीच में बोल दे रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का 3 से 4 क्लास लूंगा, मिनिमम 3 to 4 क्लासेस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग टुडे, और मतलब और 3 क्लासेस डेमो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही कवर होगा। हाँ ठीक है। अच्छा सर, तो ये जो सिलेबस है आप दिखा रहे थे, एक बार वापस दे। हाँ, मीनिंग एंड स्कोप, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी तक यूनिट 3 तक हो जाएगा 3 से 4 क्लास में, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएगा। मतलब सिलेबस ही कवर हो रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मिल जा रहा है। उसके बाद यूनिट 4, 5, 6 ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन ही है, बट ये चैप्टर वाइज करेंगे, तब बुक खोल खोल के करेंगे और दिखाएंगे। सर यहाँ तक बुक खुद से देख लोगे, मैं दिखा दूंगा, होमवर्क में हर रोज बोल दूंगा कहाँ से कहाँ कवर हो गया। क्लियर है? और सर फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एकदम लास्ट में करेंगे, 2-2 पन्ने का चीज है। अकाउंटिंग पॉलिसीज तक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, मतलब यूनिट 6 तक। सर 4-5 क्लास लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, 4 से 5 क्लास लग जाएगा। ठीक है, जितना कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनोगे उतना। सर यहाँ से मार्क्स भी आता है? हाँ मार्क्स भी आता है। ओके, देन वी विल गो इनटू अकाउंटिंग प्रोसेस व्हिच इज यू नो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जो बचपन में पढ़ते थे। फिर एक एक करके टॉपिक्स है, बीआरएस है, इन्वेंट्री है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, यू नो डेप्रिसिएशन है, बिल्स है, मैं बोला था 11-12 पे सारा था। ये नया है, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस, 2 मिनट का टॉपिक है। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, ओके। एंड देन यू हैव फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स, ऑल दीज वेर क्लास 11-12, एंड एनपीओ, एंड यू हैव कंपनी अकाउंट्स। सर यही है सिलेबस? हाँ यही है सिलेबस, मैं बोला था 11-12 जैसा है, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा। ओके, कम बैक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यूनिट 1 ही कवर हो रहा है अभी। I have come back. We have just done what is accounting. We have just done what are transactions, and we have just doing what is bookkeeping. Now the fourth thing which I was saying is bookkeeping versus accounting. ये एक पॉपुलर क्वेरी और टॉपिक पढ़ाया जाता है क्लास 11-12 में, सॉरी 11 का एकदम शुरू में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, के बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, ऑल राइट। नाउ लाइक आई सेड, मेरे को अभी मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था, तुम लोग मेरे साथ ही कर सकते हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अपने फर्क अभी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, मेरे को बताना तुम लोग। नंबर 1, बुक कीपिंग small or big process? Bookkeeping is a smaller process and this is a bigger process. Okay, now tell me, this is number 1. Number 2, मेरे को बताना, bookkeeping में अगर प्रोसेस स्मॉलर है तो नॉलेज स्मॉलर होगा या बिगर होगा? स्मॉलर एंड बिगर। ठीक है, लेस एंड मोर, बेटर लैंग्वेज इज लेस एंड मोर। ठीक है ना? अच्छा, नंबर 3, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? ऑफ कोर्स लेस टाइम बुक कीपिंग एंड मोर टाइम अकाउंटिंग। अच्छा सर, नंबर 4, टाइम के साथ कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, नॉलेज और टाइम जिसमें ज्यादा है उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। हाँ, तो कॉस्ट इज लेस एंड मोर। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या लगेगा? अभी सोचो, मैं बोला था बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। सो पार्ट बुक कीपिंग is a part of accounting. Okay, accounting, and not the other way, यानी कि accounting is not a part of bookkeeping. Okay guys, so these are the differences. Apart from this there are many other differences. Books में 11-12 में इतना वाहियात differences लिखा रहता था, क्या बोलूं।
लिखा रहता था बुक कीपिंग जो करता है उसका नाम बुक कीपर, अकाउंटेंसी जो करता है उसका नाम अकाउंटेंट। ठीक है, ये सब कॉस्मेटिक डिफरेंसेस है, बट ऑफ कोर्स यू कैन राइट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर आंसर। क्लियर है पूरा? ओके तो सर ये सारे डिफरेंसेस अपने बुक में लिखा रहेगा? हाँ बुक में लिखा रहेगा। मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट बुक ना खोल के ही अपना थ्योरी हो जाएगा और अपना प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, इतना एक्सपर्टाइज है अपने। तो बुक खोलेंगे टाइम टू टाइम, घर में तुम लोग को खोलना पड़ेगा, तुम लोग को वो डेवलप करना पड़ेगा एक्सपर्टाइज। आई टेल यू द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज ग्रोस थ्रू क्लासेस एंड ऑल्सो होमवर्क। क्लास के बाद जो घर में तुम बैठ के मेरा बातों को सोच के बुक्स को खोलोगे, ये बुक वो बुक, 3-4 बुक जब खोलोगे तब जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, किसी का नहीं होगा उतना कॉन्सेप्ट। सर आपका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? वैसे क्लास करने के बाद घर में 3-4 बुक देखता था। वेरी इफेक्टिव हैबिट। ओके ऑल राइट। नंबर 5 सर ये 4 टॉपिक तो क्लियर है ना? ओके तो नंबर 5 इज systems of accounting। ये भी बचपन में पढ़े हुआ चीज है, बचपन मतलब क्लास 11 you have covered this also। there are 2 systems of accounting। okay number one you guys know the single entry system and the double entry system। okay you guys have heard this and you guys know this, and I will talk about these 2 systems in isolation, मतलब दोनों को अलग अलग समझाऊंगा, सॉरी दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। एंड उसके बाद अपने क्या करेंगे, इस दोनों का नोट लेंगे और आज का क्लास 12:30 में 12:30 बजे खत्म होगा, 1.5 घंटे का। तो ये है फंडा और प्लानिंग फॉर टुडे। ओके सर तो बताइए ये 2 सिस्टम्स क्या है? ओके नाउ मैं बता दूं, दुनिया भर में अकाउंट्स करने का 2 तरीका है। एक तरीकों को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरे को अपने बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो दुनिया भर में माना नहीं जाता है, कुछ लोकलाइज जगह में लोकली यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम दुनिया भर में माना जाता है। इसके पीछे कारण एक ही है, आज हम लोग कोई भी तरीका अपनाते हैं दुनिया भर में, तो कौन सा तरीका अपनाते हैं, साइंटिफिक वाला या अनसाइंटिफिक वाला? साइंटिफिक वाला। So I tell you, double entry is scientific. Double entry is what? Scientific. And single entry is unscientific. And that is why single entry is not popular and double entry is popular. Double entry is globally accepted. Single entry is only local. And of course, the knowledge required in double entry will be more and single entry will be less. And not only that, not only the knowledge, the time will be in double entry and the cost will be in double entry more and less। ये तो differences हो गया और features भी हो गया। हाँ, features of single entry and double entry, और वही difference है between single entry and double entry। तो 3 theory topic हो गया in a way, but concept क्या है सर? accounts करने का तरीका है ये दोनों, systems of accounting। 2 तरीके से अकाउंट्स, ये जो सीख रहे हो अकाउंटिंग, अकाउंट्स 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है सिंगल एंट्री, दूसरा है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में when we talk about single entry, in single entry we record transactions incompletely, but in double entry we record transactions completely। in single entry there is no completeness and there's no science, haphazard, and in double entry it's a scientific way, that's why it's adopted universally। And in fact in your syllabus the accounting and the thing which you will learn is nothing but double entry only, and that is why double entry is a part of your syllabus also and what we learn also। सिंगल एंट्री का एक चैप्टर होता है, वो तो 11-12 में देखे थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग फ्रॉम।
Okay, so that's the funda of single entry and double entry. The differences, I will write them down one by one. You will copy them. Then I will explain you what is double entry principle. What does the double entry principle state? And then we will recap, and I'll show you a little bit of book, and we will call it. We will continue. This week we have a couple of more accounts class. Okay, all right. Now let us continue. So single entry is unscientific. This is scientific. Sorry. Okay, this is unpopular. This is basically what we are doing is the difference between single entry and double entry based on their features. So you're learning 3 topics in effect: eight features of single entry, features of double entry, and also difference between double entry and single entry. Okay, all right. So unpopular, this is popular. This requires less knowledge. This requires more knowledge. Less time and cost. That's why more time and cost. And lastly, but not least, that is incomplete and complete. There are other differences also, like I said, last but not least. Okay, so uh, you know, now I will tell you what is double entry principle. What is double entry principle? और इसके साथ बहुत कुछ अकाउंट्स का सीख जाओगे ये एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से. What is double entry principle and double entry principle क्या बोलता है and what does it state? Okay, so I will give you a dictation. You can write in your copy. The copy, हर एक सब्जेक्ट का अलग से कॉपी बनाना, फ्रेश उसमें सब कुछ लिखना. मैं तो अकाउंट शुरू किया यहाँ से, बट अकाउंट शुरू करने से पहले भी आज बहुत कुछ लिखाया और दिखाया और प्रेजेंट किया. Some classes I will show you many slides. Every resources will be given and shared with you also through our Telegram channels and WhatsApp. Whatever we will do administratively, we will share with you. Write down, write a note. Class का feeling जैसे class में लिखते हो. Okay. What is double entry? I am not writing, but I am dictating. You guys write down answer to this. Okay. देखो, double entry principle states. Double entry principle states that every transaction has got two aspects. Every transaction has got two aspects. Okay, one is the receiving aspect and the other one is the giving aspect. हर ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन में दो एस्पेक्ट जुड़ा हुआ रहता है. एक, हम लोग को कुछ मिलेगा और दूसरा, हम लोग को कुछ खोना पड़ेगा. The receiving aspect of a transaction, mind you, the receiving aspect of a transaction is known as
debit. The receiving aspect of a transaction is known as debit, and the giving aspect of a transaction is known as credit. ठीक है ना? तो the receiving aspect, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा पॉज करके मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, वो ये है कि अपने अपने बचपन से बड़ा होते वक्त कॉमर्स में बचपन होता है क्लास 11 और बड़ा होता है सीए फाइनल, तो बच्चे से बड़ा होने तक आप लोग जो सुनते हो डेबिट क्रेडिट, बहुत लोग को डेबिट क्रेडिट सीए बनने के बाद भी परफेक्टली एक लाइन में बोलना नहीं आता है। व्हाट इज डेबिट तुम पूछना किसी को भी, समटाइम्स पीपल फंबल। डेबिट एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, डेबिट is nothing but the receiving aspect of a transaction. Debit is nothing but a receiving aspect of a transaction. बहुत लोग गोल्डन रूल का बोल देते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। नहीं, डेबिट का डेफिनेशन क्या है? थॉट है, एक सोच है, कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अ डेबिट? एक ट्रांजैक्शन में जो मिलने वाला चीज है उसको अपने डेबिट बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन में एक रिसीविंग एस्पेक्ट है, एक खोने वाला एस्पेक्ट है। रिसीविंग एस्पेक्ट को अपने वो क्या बोलते हैं? डेबिट। और गिविंग एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। एंड हमेशा डबल एंट्री के अनुसार, डबल एंट्री प्रिंसिपल के अनुसार हमेशा डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, एंड ऑल ट्रांजैक्शंस whichever transactions are happening in a business are recorded under double entry completely. सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीटली होता है, कुछ रिकॉर्ड होते हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए इनकम्प्लीट है। डबल एंट्री में हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट या दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, दैट इज द डेबिट आल्सो एंड द क्रेडिट आल्सो। दैट्स व्हाई सिंगल डबल एंट्री इज साइंटिफिक एंड अ पॉपुलर चॉइस एंड गिव्स यू करेक्ट। क्लियर है? करेक्ट पिक्चर क्लियर है? तो यही सब लिखना है। तो अभी लिखो, कंटिन्यू करते हुए डेबिट एंड क्रेडिट लिखो। द रिसीविंग एस्पेक्ट of a transaction is known as debit, and the giving aspect of a transaction is known as credit. Credit का acronym is CR, commonly known as what? CR. एंड डेबिट को क्या बोलते हैं हम लोग? डीआर। हम लोग कॉमर्स वालों के लिए डीआर इज नॉट डॉक्टर बट डेबिट। ठीक है? ओके ओके सर, क्लियर है? ओके, नाउ मैं जो बोला एक बार बोल देता हूं। इसके साथ साथ मैं बोला अंडर डबल एंट्री सिस्टम all the transactions are completely recorded. Transactions are completely recorded in the books. Double entry also further states that debit must be equal to credit. Sorry, debit must be equal to credit. यही तो है डबल एंट्री, यही है सर डबल एंट्री। सर ये डबल एंट्री प्रिंसिपल कब इन्वेंट हुआ, मतलब अकाउंट्स कब से शुरू हुआ? सिविलाइजेशन में। थोड़ा हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा देता हूँ, आई लुक लाइक अ हिस्ट्री प्रोफेसर मे बी। ओके, सो सिविलाइजेशन में जब से ट्रेड शुरू हुआ, ट्रेडिंग, तब से सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग भी शुरू हुआ। जब से व्यापार शुरू हुआ तब से अकाउंटिंग शुरू हुआ। इसका कारण एक ही है कि व्यापारी लोग को तो अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा, हिसाब करना ही पड़ेगा। मैं अगर व्यापार में हूं तो मेरे को हिसाब चाहिए, किताब चाहिए। तो अर्थशास्त्र, जो इतिहास में पढ़े थे अर्थशास्त्र इंडिया का ही, ठीक है, जब से है तब से अकाउंटिंग है। मैथमेटिक्स जब से है तब से अकाउंटिंग है।
बेसिक मैथ्स ही तो है, जोड़ना घटाना। और इसको फॉर्मली फॉर्मली इसका फर्स्ट हिस्टोरिक रेफरेंस रेनेसा पीरियड में, यूरोप का रेनेसा पीरियड में, यूरोपियन रेनेसा में 15th सेंचुरी में 1490 या 80 के आसपास मिला गया था। लूका पैचोली बोल के, लूका पैचोली, सर व्हाट इज द स्पेलिंग? LUCA लूका, PACIOLI, लूका पैचोली। हिज बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका और एरिथमेटिका, वहां पे उसका बुक में पहला जिक्र मिला था डबल एंट्री प्रिंसिपल इन 15th सेंचुरी। सर ये हिस्ट्री ऑफ ये बताए, हाँ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग भी थोड़ा बहुत बता दिया पहला दिन। नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विथ डबल एंट्री साइकिल, सिंगल एंट्री and also branches of accounting, and उसके आगे मैं थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ठीक है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड उसके आगे एंड उसके आगे, ठीक है ना? तो ये सारे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा। मैं अभी रिवीजन कराऊंगा और बुक दिखाऊंगा, टाइम है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास का झलक दिखा दिया, ओके। तो अभी मैं रिवीजन शुरू से एक बार करा देता हूँ, क्या क्या पढ़े आज, ठीक है? ये अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके पहले जो बात हुआ वो तो इम्पोर्टेंट टॉक्स था, कोई भी पहला क्लास में होना चाहिए, कोई भी कोर्स के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो सर अकाउंट्स क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड communicating and reporting of transactions. And what are transactions? Transactions are economic events which changes the financial position of an entity. यानी कि जो इकोनॉमिक घटनाएं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी को बदल दे, वैसा घटनाओं को अपने क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। दे मस्ट बी मॉनेटरीली एक्सप्रेस्ड, एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस जनरली, मतलब जाहिर है। ओके सर, फिर बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का सेल्फ रिकॉर्ड मेकिंग फेज को अपने क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। पूरा अकाउंटिंग में बहुत सारा फंक्शंस है, उसमें खाली रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन को अपने क्या बोल सकते हैं? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क भी हम लोग देख लिए। उसके बाद मैं बोला दो सिस्टम होता है दुनिया भर में अकाउंट्स करने का। एक महंगा वाला डबल एंट्री जो कंप्लीट है, साइंटिफिक है, इसलिए पॉपुलर है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली एक्सेप्टेड वाला डिफरेंस लिखा नहीं, भूल गया, ठीक है? मोर नॉलेज लगता है, मोर टाइम एंड कॉस्ट लगता है, और दूसरा पूरा उल्टा है उसका, ठीक है? अच्छा सर, डबल एंट्री बोलता क्या है? डबल एंट्री बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट रहता है, दो एस्पेक्ट। वन इज द रिसीविंग एस्पेक्ट एंड द अदर वन इज द गिविंग एस्पेक्ट। वन इज द रिसीविंग एस्पेक्ट, द अदर वन इज गिविंग एस्पेक्ट। कुछ मिलेगा, कुछ खोगे, ठीक है ना? अच्छा सर, the receiving aspect is known as debit, whereas the giving aspect is known as credit. Okay sir, under double entry system all transactions are completely recorded in the books? Yes, complete, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सिंगल एंट्री में सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग होता है, बाद में जाके पता करेंगे। और मैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बोला, और नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करूंगा बोला। और अभी मैं थोड़ा सा बुक दिखा के आज का क्लास खत्म करेंगे अपने 12:30 बजे, ठीक है? 2 बजे आप लोग का मैथ्स क्लास है, रिमाइंडर दे दिया, तो प्लीज डू अटेंड दैट एंड लेट अस quickly see the book like I was showing। बुक में एक बार देख लो कि क्या है। देखो यूनिट वन का नाम क्या है? प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में अपने वही सारा है। देखो ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो मैं बोला, ठीक है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैं जो बोला, एक बार घर में खुद से पढ़ के आ सकते हो, इफ यू कैन डू इट वेरी सिंसियरली फ्रॉम डे वन। आई कैन टेल यू, कमिटेड अचीवर खाली नाम जानने से ही नहीं होगा, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा और करना पड़ेगा मेहनत, बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा, एकदम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तब जाके तुम एंड ऑफ द टनल में बन के निकलोगे जो बनना चाहते हो, ठीक है?
फिर देखो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मैं जो जो बोला वो सारा चीज को समराइजिंग, एनालाइजिंग, हर एक शब्द को बोला। इंटरप्रेटिंग, सर इंटरप्रेटिंग नहीं बोले, हाँ इंटरप्रेट करना इज अ पार्ट ऑफ एनालाइजिंग ओनली, एंड कम्युनिकेटिंग, रिपोर्टिंग। ओके, फिर एवोल्यूशन, हिस्ट्री बोला गया, मैं जो हिस्ट्री बोल रहा था, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मैं नेक्स्ट क्लास बोलूंगा, सो आई एम राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास। Objectives, okay, you can read on your own and then come. Functions almost same. Bookkeeping I have done, bookkeeping we have done, and देखो what else is difference we have done. I'm just showing, देखो मैं बोला ना, मैं जो बोलूंगा वही बुक हो जाएगा, ठीक है। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मैं बोल रहा था ना नेक्स्ट क्लास, यही सब फील्ड है, दिस वन इज सब फील्ड, ठीक है। ओके, ऑल राइट सर। फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट दिन बोलूंगा, मैं बोला यूजर्स, यूजर्स आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लास। ओके, एंड देन वी डू नॉट हैव मच, वी हैव रिलेशनशिप अकाउंटिंग विद अदर्स, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से पढ़ लेना, एंड फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। नहीं सर, इसके बाद लिमिटेशन है, हाँ लिमिटेशन भी नेक्स्ट दिन बोल दूंगा, लिमिटेशन रोल, okay, limitation you also can do। okay sir, what is this? Chartered accountants का रोल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडस्ट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या रोल है, ठीक है। तो ये जो limitations and chartered accountant का roles you can self study and then come। okay, thanks for attending today's class, it has been a very very uh, insightful session, I hope some of you knew all the concepts which I spoke about. Don't get bored, because you have to start from zero base, you cannot just start from right away। foundation का मतलब ही होता है zero base से start करना। ये एटीट्यूड अगर रख पाओगे तो सीए में बहुत आगे जा पाओगे, एकदम जीरो से हर चीज शुरू करो और बढ़ाते जाओ, कभी कभार रिपीटेटिव लगे तो सुन लो। थैंक यू गाइस, बाय बाय। I will sorry, I have a query session planned, तो किसी का कुछ query है तो you can just write, I can address that, I forgot to mention that। if there's any query, every class I give 5 to 10 minutes after class time just to handle queries one on one। किसी का कुछ query है तो लिख सकते हो। okay, I don't see anyone writing anything, so I presume all of you are more or less good with today's class। We will meet again as per schedule, thank you।